वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूं वकास। आप देख रहे हैं बिज़नेस स्कूल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज मेरे साथ मौजूद हैं मंजूर साहब। आप सेल्स के डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं। गुज़श्ता 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है और इस वक्त आप कॉस्मेटिक्स के बिज़नेस में आ चुके हैं, एंटर हो चुके हैं। अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च की है और मज़ीद आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि सेल्स के क्या क्या मसाइल होते हैं, किस तरह से उनसे निपटा जा सकता है और इनकी जो अपनी प्रोडक्ट है कब शुरू की, क्या रिजल्ट्स मिले, क्या मसाइल आए, एक नई प्रोडक्ट थी मार्केट में। तो ये तमाम चीज़ें हम इनसे सीखेंगे और आपको सिखाने और समझाने की कोशिश भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मंजूर साहब, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मालिक एहसान। ठीक है मंजूर साहब, सेल्स में कितना अरसा लगा है? वैसे तो प्रॉपर तो मैं 20 साल तो काम कर रहा, बाकी और पहले काफ़ी सारे काम किए, काफ़ी चीज़ां सेल कीतियां ने। इस तो तकरीबन पहले 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 तो हूँ मैं कॉस्मेटिकल साइड ते हूँ दोबारा आ रहे हैं इंशाल्लाह। तकरीबन 20 साल हो गए ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ जी मार्केटिंग ਨਾਮ जी ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ जी ਆਪਣਾ। जी ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ बीबी मुल्तानी मिट्टी के नाम जी तो। जी। कितना अरसा हो गया सर? तकरीबन अभी तक तो 6 माह है। एक सीज़न, पहला सीज़न हाँ जी, लगाया, पहला सीज़न भी है, ऑफ सीज़न लाया है। हाफ सीज़न हाँ लगाया। जी, गर्मियाँ का सीज़न है सर्दियाँ का? ये ज़्यादा गर्मियाँ ज़्यादा प्रोडक्ट गर्मियाँ 'ਚ ਚੱਲਦੀ, गर्मियाँ चलती, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਚੱਲਦੀ, बहुत चलती है, स्लो है। ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਏ ਸੀ? मसाइल तो पहले पेश आए भी वो इनकी कोई अखराजात अगे डब्बी छुपा मटीरियल खरीद लिया, फिर तैयारी कर, फिर मार्केटिंग के अंदर जो मसाइल होंगे ना, दुकानदार जोड़े होंगे वो पहले नवें सिरे कोई चीज़ लैके जाओ तो रख देनी। जी ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਧਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਸੇਲਮੈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹ ਬੁੱਧਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਰੰਗਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਮਿਹਨਤ, ਹਿੰਮਤ, ਜੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਆਏ ਕਰੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਲ ਲਾ ਲੈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਉਠਾਣੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਫੌਰੀ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੇਲ ਤੇ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੇਲ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਲੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਐਸਾ ਬੈਠ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, बोतल पिलानी शुरू कर दी, माल लेना शुरू करता, फिर मार्केट बन गई। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸੀ? 6 ਮਹੀਨੇ, तकरीबन ਸਾਲ, 6 महीने तो लग गए। 6 6 ਮਹੀਨੇ महीने लग ਤੁਸੀਂ गए ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ जी ਦਿੱਤਾ ਸੀ। जी बिल्कुल जी कर। ਅੱਛਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਗਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? पहले कॉस्मेटिक की जितनी भी चीज़ें हैं ऐसा करके एक बनावांगे इंशाल्लाह, एक करके यानी कि एक market चीज़ बना लिया और कामयाब कर लिया, फिर दूसरी भी तीसरी। ਕਿੰਨੇ ਪੈਕ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ? मिट्टी मुल्तानी मिट्टी के से तीन पैक साइज, 4 पैक साइज है। ਠੀਕ ਹੈ। मजीद अगे एक पैक साइज और लेना चाहते हैं। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਨੇ? तकरीबन एक साढ़े को यानी कि छोटे शाशे 10 रुपये सेल दे। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 30 ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਹੈ, ਜੀ। ਇੱਕ 50 ਰੁਪਏ ਸੇਲ, ਇੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੁਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੈਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ 20 ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਦਾ, ਇੱਕ 150 ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, 4 ਪੈਕ ਸਾਈਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। 4 ਪੈਕ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ।
ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਖਰਚਾ ਰਾ ਹੈ। ਮਟੀਰੀਅल्स ਰॉ और ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ को पैक करवाना आप तो करोगे तो फिर पता बच जाएगा हाँ जी मजदूरी। हाँ जी। जो मजदूरी तो कराओगे तो रेगुलर खर्चा है डेली, यानी कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ को कराते हो 200-300 रुपये डेली ਦਾ ਖਰਚਾ, 200-300 ਪੀਸ ਪੈਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪੈਕ ਦਾ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? 80 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪੀਸ। 1 ਰੁਪਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬੁਜਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਚੀਜ਼, ਤੱਕ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ऐसी की पैकिंग जैसे कर रहे हैं, ਤੁਸੀਂ एक कंडा चाहिए। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਹੋ जी। एक कंडा चाहिए था, बस जी। मटेरियल चाहिए पैक कर। ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਔਰ ਮਟੀਰੀਅਲ। हाँ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਈਏ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ जी जी ਹੈ। पैक। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬਜਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ नहीं, ਰਹਿਣਾ पैकिंग ਚਾਹੀਦਾ? में जाना चाहिए। ਅਗਰ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਜੇ ਵੀ ਜਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਦਤ ਪੈਕਿੰਗ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਿੱਦਤ ਜਾਓ, ਪੈਦਾ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਲਓ। ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿੱਦਤ ਆਏਗੀ ਔਰ एक ਦੂਸਰਾ टाइम की बचत होगी, एक ज्यादा तादाद च माल तैयार है। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਕਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਾਦਾਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 300 200 300 400 ਪੀਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪਕਾ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਵਿੱਚ ਵਿਲਾਹ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨ। ਨਸਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਨਸਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਫਾ। ਯਾਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਔਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਚਣ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਨਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਆਣੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਆਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਰ लो जिन भी आने ने, ਹਾਂਜੀ, उनमें सेव करना, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मार्केट उसमें मार्केट है। बात करें कि हम खुद मुल्तानी मिट्टी का कारोबार किस तरह से कर सकते हैं और कितने बजट में कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडमार्क लेंगे जो कि हमारा नाम होता है 15,000 रुपये का, जिस तरह से बी मुल्तानी मिट्टी। बी एक ट्रेडमार्क है जो कि मंजूर साहिब ने लिया और इस वक्त वो इस नाम से चला रहे हैं। जो आपका नाम होगा वो आपका ट्रेडमार्क होगा, या आप IPO ऑफिस से ले सकते हैं। IPO ऑफिस इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में मौजूद है। अगर आप हमसे ट्रेडमार्क करवाना चाहें तो ट्रेडमार्क की फ़ीस 15,000 रुपये है। उसके बाद हम अपनी डब्बी बनवाएंगे। डब्बी एक पैक साइज़ जो है वो हमारी कम से कम 5,000 डब्बी प्रिंट होगी, और इसके रेट्स जो है 16 से 20,000 रुपये के दरमियान में होंगे, जो कि उसके साइज़ और मटेरियल पे वेरी करेंगे। हम 20,000 रुपये ही अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा 20,000 रुपये डब्बी पे खर्चा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल में मुल्तानी मिट्टी ही हमारे रॉ मटेरियल है, इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं की जाएगी। तो मुल्तानी मिट्टी अगर हम डलियों की सूरत में लेते हैं तो ये हमें 10 से 12 रुपये किलो में मिलेगी, लेकिन उसको हमें पिसवाना पड़ेगा। और अगर हम पिसाई मुल्तानी मिट्टी की बात करें तो ये हमें एक 35 किलो का तोड़ा मिलता है, जो कि ग्रेडिंग के हिसाब से महंगा या सस्ता हो सकता है। मंजूर साहिब के मुताबिक उन्होंने जो सबसे सस्ती मुल्तानी मिट्टी एक दफ़ा ली वो 1,500 रुपये की ली, और जो सबसे महंगी ली वो 3,500 रुपये का वही गट्टू मिला। मतलब कि 30-40 रुपये से लेकर 100 रुपये किलो तक आपको पिसाई मुल्तानी मिट्टी मिल सकती है, डिफरेंट क्वालिटीज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप 1,500 वाली लेना चाहते हैं या 3,500 वाली। हम 3,500 वाले गट्टू की बात कर लेते हैं कि हमने सबसे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इसमें शामिल किया, और कुछ भी नहीं करना आपने। उसके अलावा आगे बात करते हैं ज़िपर की। ये जो ज़िपर बैग होता है ये वाला, इसके लिए किसी पैकिंग मशीन की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली हम इसको खोलते हैं, अंदर मटेरियल डालते हैं और ऊपर से ऐसे बंद कर देते हैं। ये डिफरेंट साइज़ में आता है, 1 रुपये से 1.5 रुपये के दरमियान ये आपको ज़िपर मिल जाते हैं। आप 1,000 ज़िपर अगर लेते हैं तो 1,000 से 1,500 रुपये में आपका ये ज़िपर बैग आ जाएगा। अगर हम कुल मिला के बात करें, लमसम की बात करते हैं, छोटे मोटे 100-50 को इधर उधर छोड़ के, तकरीबन 35,000 प्लस माइनस में
आप अपना मुल्तानी मिट्टी का ब्रांड एक पैक साइज़ में ला कर लॉन्च कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा पैक साइज़ बनवाएंगे तो हमारा प्रिंटिंग का ख़र्चा उसी तरह से बढ़ता जाएगा। जैसा कि मंजूर साहब ने कहा कि उनका काम 1 लाख रुपए में शुरू हुआ, उन्होंने 4 पैक साइज़ सेम टाइम में इंट्रोड्यूस करवाए। तो आप चाहें ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, चाहे तो एक पैक साइज़ भी मार्केट में ला सकते हैं। और अगर आप अच्छी पैकिंग की तरफ जाना चाहते हैं, इस तरह की पैकिंग की बजाय दूसरे जो पैकिंग मैंने पहले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, मशीन से पैकिंग करना चाहें तो पैकिंग मशीन जो है ये 2 लाख रुपए में आ जाएगी। तो अगर पैकिंग मशीन की तरफ जाएंगे तो 2,35,000 रुपये में आपका ये सेटअप शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपका ज़िपर की जगह दूसरा जो है अपना प्लेन जो पेपर होता है वो लग जाएगा और वो इससे सस्ता पड़ेगा। ये तो 1 से 1.5 रुपये में पड़ता है, वो आपको चंद पैसों में एक पेपर पड़ेगा, तो आपकी कॉस्टिंग मज़ीद कम हो सकती है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशंस की। प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात करें तो हमारी मुल्तानी मिट्टी 50 ग्राम वाला जो पैक साइज़ होता है उसमें 40 ग्राम मुल्तानी मिट्टी होती है, बाकी 10 ग्राम उसकी डब्बी का और रैपर वगैरह का वज़न होता है। तो जो भी चीज़ पैक करके बेची जाती है वो वज़न डब्बी और रैपर और हर चीज़ के समेत ऊपर लिखा जाता है। तो उसमें 40 ग्राम हमारी मुल्तानी मिट्टी आएगी। यहाँ पे जो हमने एस्टीमेट रेट लगाया है वो सबसे महंगी वाली का लगाया है कि हमें 100 रुपये किलो पड़ी, तो हमें 4 रुपये की मुल्तानी मिट्टी एक पैकेट में पड़ेगी। अच्छा जी, पैकिंग का जो खर्चा है हमारा 4.5 से 5 रुपये हम लगा लेते हैं। हम 4.5 के बजाय 5 ही लगा लेते हैं कि जनाब हमें 5 रुपये का पैकिंग मटेरियल पड़ गया। 1 रुपये मजदूरी पैकिंग की है अगर हमारे पास पैकिंग मशीन ना हो तो। अगर पैकिंग मशीन हो तो ये मज़ीद कम हो जाएगी। बिजली का इस पर कोई यहाँ तक खर्चा नहीं आया, तो हमारे कुल खर्च फ़ी पैकेट पे जो है वो तकरीबन 10 रुपये आ जाएगा। अच्छा जी, ये दुकानदार को पैकेट जाता है 15 से 20 रुपये का और इसकी रिटेल जो होती है वो 30 रुपये में होती है। 40 रुपये में भी कुछ कंपनीज कर देती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप इसको 30 पे बेचना चाहें रिटेल में, 35 में, 40 में, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, अब हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो अगर हमने दुकानदार को ये 15 रुपये का दिया, मतलब कि डबल मार्जिन, तो फिर हमें बचेंगे 5 रुपये। और अगर हमने दुकानदार को ये 20 रुपये का सेल किया तो फिर हमें बचेंगे 10 रुपये। तो 5 से 10 रुपये मार्जिन फ़ी पैकेट। सबसे पहले तो हमें यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करें कि 1 किलो में कितने पैकेट हैं। 1 किलो में से हमारे 25 पैकेट निकलेंगे 50 ग्राम वाली पैकिंग के, जिसमें हमने 40 ग्राम पैक किया था। अब फ़ी किलो मुनाफा की अगर हम बात करें तो 125 से 250 रुपये हमें इससे मुनाफा हो सकता है। अगर हम 5 रुपये फ़ी पैकेट बचाएं तो हमें मुनाफा होगा 125 रुपये, और अगर हम 10 रुपये फ़ी पैकेट बचाएं तो हमें मुनाफा होगा 250 रुपये। और यहाँ पे हमने मुल्तानी मिट्टी के हाईएस्ट रेट्स कैलकुलेट किए हैं। ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि मुल्तानी मिट्टी पीसी पिसाई आपको 30 रुपये किलो भी मिल जाएगी, 40 रुपये भी मिल जाएगी, 50 भी, और मैंने आपको जो हाईएस्ट रेट बताया वो 100 रुपये बताया। ये सबसे महंगी अगर आपको कहीं से मिलेगी तो इस रेट में पिसी हुई मुल्तानी मिट्टी मिलेगी। लिहाजा इसमें अच्छा मार्जिन रेशो, मतलब कि अगर आपने 100 रुपये ख़रीदी तो आपको 125 रुपये बच रहे हैं। हम कम से कम मुनाफा ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि 100 रुपये की ख़रीद के 125 रुपये में बेच दी, मतलब कि डबल से भी ज़्यादा मुनाफा। और अगर यही मुल्तानी मिट्टी हमने 40 रुपये किलो वाली ख़रीदी होती तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आप कितना मुनाफा इसमें से कमा सकते हैं। कोई 250 से 300 रुपये मुनाफा आसानी के साथ इस 1 किलो में से कमा सकते हैं। कहाँ 40 और कहाँ पे 250 से 300 रुपये। बहुत ज़्यादा मार्जिन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है अगर हम इसको मज़ीद बेहतर अंदाज में करते चले जाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप भी अगर मुल्तानी मिट्टी का कारोबार करना चाहें तो तमाम फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके सामने है। बताता चलूँ कि ये गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा सेल होती है और सर्दियों के सीज़न में इसकी सेल काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो अगर आप इन गर्मियों में ये कारोबार करना चाहते हैं तो अभी से इसकी प्लानिंग शुरू कर दीजिए, तब ही जाके आप गर्मियों में अपनी मार्केट बना पाएंगे। और अगर आपने सर्दियों का कारोबार करना हो तो उसकी प्लानिंग गर्मियों में ही शुरू कर दिया करें, उस पर काम करना शुरू कर दिया करें
क्योंकि जो भी ब्रांड्स हैं वो मौसम शुरू होने से पहले अपनी प्रोडक्ट दुकानों में ला के रख देते हैं। यही वजह है कि जब हमारे जैसे नए लोग मार्केट में जाते हैं तो ऑलरेडी प्रोडक्ट दुकानों में लगी पड़ी होती है, दुकानें उससे भरी पड़ी होती हैं, तो फिर हम अपनी प्रोडक्ट की जगह बनाना जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, या एक तरह से कहें कि नामुमकिन हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।